Student, myself Yogendra Tyagi. Today we will be discuss chapter first, class 9th, नंबर सिस्टम. स्टूडेंट, इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हम पहले डिस्कस करेंगे जो कि हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस हमने किया था. जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर. हम इनको पहले आपस में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर. तो डिस्कस करें स्टूडेंट हम सबसे पहले, जिससे कि आपको जो प्रीवियस क्लासेस में आपने किया है वो आपको फिर से क्या हो जाए, लर्न हो जाए चीज़. In our previous classes, we have learned about various types of numbers such as rational number, natural number, whole number, integer, rational number. First, student, natural numbers. The counting numbers 1, 2, 3, 4, 5 dash dash are called natural number. The smallest natural number is 1. But there is no largest as it goes up to infinity. Set of natural number is denoted by n, and numbers are 1, 2, 3, 4 dash dash dash. Next, whole number student. Whole numbers. In the set of natural numbers, if we include the number 0, the resulting set is known as the set of whole number. Set of whole numbers is denoted by capital W, and example is 0, 1, 2, 3, 4 dash dash dash. Next, integers. Natural number along with 0 and their negative are called integers, denoted by capital Z. Capital Z equal to dash dash -5, -4, -1, 0, 1, 2, 3. Positive and negative numbers are in this set. Next, rational number. A rational number is a number which can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0. Q not equal to 0 then is called rational number. As a example, 2 upon 3, 1 upon 2, 2, 5. स्टूडेंट, P अपॉन Q की फॉर्म में है लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अपॉन 1 आप यूज़ करिए, देखिए P अपॉन Q. सो दीज आर रैशनल नंबर्स. क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक आपको जो प्रीवियस क्लास की जो हमारे मेन चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की यहाँ पर. नेक्स्ट, इसके बाद देखिए स्टूडेंट, नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स आर नोन एज नंबर 0, 1, 2, 3 आर नंबर्स. even number, a number which is divisible by 2 is called even number. odd number, a number which cannot be divisible by 2 is called odd number. prime number, a natural number which is divisible by 1 and itself is called prime number. example, prime number example student, 2, 3, 5, 7, 11 is called prime number because only two factors are 1 and itself. Next, composite number, a whole number that can be divided even by numbers other than 1 or itself is called composite number. As an example, 4, 6, 8, 9. Co-prime number, two numbers are said to be co-prime if their SCF is 1. As an example, co-prime number, example 4, 5, 7, 11,
इज को प्राइम बिकॉज देयर HCF ओनली 1। क्या है इन दोनों का HCF? ओनली 1। सो स्टूडेंट, वी डिस्कस सम टॉपिक्स ऑफ प्रीवियस क्लासेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट थे ये सभी, जो इस चैप्टर में हमें स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। आपको ध्यान आ चुका होगा अब सभी कुछ, ये बातें हमने पहले भी की थी, डिस्कस की थी। सो स्टूडेंट, आफ्टर दिस अब हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 NCERT क्लास 9। फर्स्ट क्वेश्चन इज 0 a rational number? Can you write in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0? According to question, verify that if is 0 a rational number, कि क्या 0 एक rational number है? If can you write in the form of P upon Q, कि क्या हम इसको P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? So student, yes, 0 is a rational number and we write it a P upon Q फॉर्म। देखिए यहां पर 0, यस 0 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज it can be write P upon Q form of P upon Q। as a example, 0 equal to 0 upon 1, then its form is P upon Q। समझे स्टूडेंट? तो 0 क्या है स्टूडेंट? 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम एक P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप अपॉन में 1 यूज करें, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर की वैल्यू जो होगी अभी भी 0 होगी, लेकिन अब फॉर्म चेंज हो चुकी है, P अपॉन Q, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में ये आ चुका है। तो हम कह सकते हैं 0 इज ए रैशनल नंबर एंड इट कैन बी राइट द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, 0 अपॉन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बाद स्टूडेंट हम। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बिटवीन हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें P अपॉन Q की फॉर्म में इनको लाना होगा। तो देखिए 3 को हम यूज कर सकते हैं 3 अपॉन 1। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर अगर हम 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, सेम नंबर से करना होगा यहाँ पर। तो देखिए 7 ऊपर न्यूमरेटर को भी हमने 7 से किया, देन 7 3 जा 21 एंड 7 1 जा 7। हमने सेम नंबर से क्यों मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट? कि अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, क्योंकि देखिए 7 से हमने न्यूमरेटर को भी किया, डिनोमिनेटर को भी किया। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। अगर आप इसको डिवाइड करें देखिए इस रैशनल नंबर को, तो 7 3 जा 21, अभी भी वैल्यू 3 ही मिलेगी हमें, लेकिन ये फॉर्म में चेंज हो चुका है P अपॉन Q की फॉर्म में। और ये इसलिए भी ज़रूरी था, क्योंकि नेसेसरी इसलिए भी था स्टूडेंट, क्योंकि हमें 3 and 4 के बिटवीन 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 4 को भी स्टूडेंट देखिए हम यहाँ पर 4 अपॉन 1, लेकिन कंपेयर करने के लिए स्टूडेंट कि 3 और 4 के बिटवीन हमें कुछ रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको ये भी यहाँ पर ध्यान देना होगा स्टूडेंट कि जो डिनोमिनेटर है दोनों ही नंबर्स का,
वो सेम होना चाहिए। तो देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पर कितना है 7 है, तो आपको इसको भी 7 रखना होगा और उसके लिए आपने यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ ऊपर न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई किया। देन 7 4 जा 28 अपॉन 7। तो 7 को से अगर हम 28 को डिवाइड करें तो हमें 4 ही आंसर मिलेगा, 4 ही वैल्यू मिलेगी। तो हमने जो भी ये यूज़ किया है मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट, ये सिर्फ रैशनल नंबर बनाने के लिए और इसलिए किया जिससे कि हम 6 रैशनल नंबर फाइंड कर सकें। लेकिन वैल्यू अभी भी देखिए 4 ही है। अगर हम 28/7 की वैल्यू कितनी होगी, 4 ही होगी और यहाँ इसकी 3 होगी। अब हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं किसके बिटवीन, 21/7 एंड 28/7। तो आप फाइंड कर सकते हैं इजीली, और वो क्या होंगे, नंबर्स बिटवीन 21/7 एंड 28/7 इज 22/7, 23/7, 24/7 डैश 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 27/7। क्लियर स्टूडेंट। तो हमने कितना इजीली इसको देखिए सॉल्व किया। हमने 3 और 4 के बिटवीन हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने थे, उसी के लिए हमने ये यूज़ किया। और हमारे पास हैं 22/7, 23/7 और डैश डैश करते हुए हम कहाँ तक शो कर सकते हैं, 27/7 तक। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। सो स्टूडेंट, अब इसी एक्सरसाइज का जो आपका थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सो स्टूडेंट 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन आपको 5 रैशनल नंबर यहाँ पर फाइंड करने हैं। थ्री अपॉन 5 एंड 4/5 के बिटवीन आपको यहाँ पर 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बिटवीन तो आप नहीं बता सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि डिफरेंस आ जाए और इनके बीच में आप 5 रैशनल नंबर फाइंड कर सकें। तो उसके लिए देखिए 3/5 इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 3/5। आप 6 से यहाँ भी अगर आपने मल्टीप्लाई किया 6 से यहाँ भी, तो कोई चेंज नहीं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर देखिए 18/30, 4/5 यहाँ भी देखिए आप स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर अगर आपने 30 डिनोमिनेटर बनाया है तो यहाँ भी 30 आपको करना होगा, तभी आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 है यहाँ पर, तो यहाँ भी आपको 6 से करना होगा और ये हो जाएगा 24/30। तो देखिए 3/5 को हमने 18/30, 4/5 को 24/30 हमने यहाँ पर बना लिया है। और अब इनके बिटवीन आप इजीली बता सकते हैं 5 रैशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट, 19/30, 20/30, 21/30 डैश डैश कहाँ तक यूज कर सकते हैं, 23/30 तक। क्लियर हो गया स्टूडेंट, इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं और रीजन बताना है। तो फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो स्टूडेंट इसका आंसर है ट्रू, बिकॉज कलेक्शन ऑफ द होल नंबर इज कंटेन द नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है वो किसका कलेक्शन है, होल नंबर्स का। ठीक है, और होल नंबर्स में क्या होते हैं स्टूडेंट, उसमें नेचुरल भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है। सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये आपका रॉन्ग है, फॉल्स है, बिकॉज निगेटिव इंटीजर आर नॉट होल नंबर। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये भी फॉल्स है, बिकॉज 2/5 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, जैसे कि एज ए एग्जाम्पल 2/5 ये होल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन
4/2 होल नंबर हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 आंसर आ गया, यहाँ पर होल नंबर हो गया। तो ये फॉल्स है, सभी नहीं हो सकते, कुछ नेचुरल नंबर हैं जो कि होल नंबर हो सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट आई होप दैट आज ये एक्सरसाइज 1.1 हमने डिस्कस की, आपको जरूर अच्छी तरह से यहाँ पर सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। इसी एक्सरसाइज को आप नोटबुक में कंप्लीट कर लें इस वर्क को। थैंक यू वेरी मच।